physical significance of an electric field and certain important questions also related to the electric field intensity or resultant electric field intensity. ठीक है? So first question, suppose two charges of magnitude q and 4q are separated through each other by a distance of 6 centimeter. Find the point where the resultant field intensity due to these two charges is equals to 0. दो चार्जेस हैं, एक है Q और दूसरा है 4Q. आपको एक लोकेशन फाइंड आउट करनी है. Just find out the location where the electric field intensity due to these system of charges is equals to 0. ठीक है? Let's suppose that point is in between these two charges. Why I am taking this point in between these two charges? Because as we discussed, the electric field intensity due to the positive charges is away from the charge. So suppose ये आपका point A है, ये point B है, तो due to point charge which is placed at A, electric field intensity is away from the charge. So that is a direction vector of electric field intensity at P due to A. Now direction of electric field intensity at point P due to the charge placed at B, that is also away from the charge 4Q. So that is electric field intensity at P due to B. Now these two vectors are opposite in direction. So if we compare their magnitude and make it equal, then the electric field intensity at point P is 0. आपको calculate क्या करना है? Find point where electric field intensity is 0. So what we have calculated, electric field intensity at point P is 0. So suppose this point P is at a distance x from the charge Q. So that distance is 6 minus x. Now as we know that electric field intensity due to the point charge is kq by r square. That is the expression of electric field intensity due to point charge. So electric field intensity, resultant electric field intensity due to these two charges is EPA and EPB that we equate, because इनकी दोनों के वेक्टर डायरेक्शन जो है, दोनों के वेक्टर जो है अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वेट कर लेंगे तो आप फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी. तो ये हो गया K इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस चार्ज की इस पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी है x, तो KQ बाय एक्स स्क्वायर. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू B is K इंटू 4Q अपॉन 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया. So that is 1 upon x square is equals to 4 upon 6 minus x का whole square. Now taking square root on both the side, so that is 1 by x is equals to 2 upon 6 minus x. इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1 by x हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 6 minus x का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6 minus x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो क्या आएगा आंसर, 6 minus x is equals to 2x. तो 6 is equals to 3x because 2x plus x 3x, 6 is equals to 3x. So x की वैल्यू क्या होगी 2 centimeter. So it will be at 2 centimeter from plus 2 charge and at 4 centimeter from 4Q charge. So that is a way to calculate the resultant field intensity at point P. Is that clear? Now next question. That consider a pendulum bob of mass m and carrying a charge of magnitude small q placed at rest in a horizontal uniform electric field E. क्या बोला है, एक पेंडुलम बॉब है of mass m and carrying a charge q placed at a rest in the uniform electric field E. As you place the pendulum bob any object, material object in the uniform electric field, it will be always experience a electric force. तो आपको कैलकुलेट करना है, find the tension in the thread of pendulum bob
and the angle made by it with a vertical. Question is what? Find the tension in the string through which the pendulum bob is connected and the angle made by it with the vertical. Initially क्या था? एक pendulum bob है of mass m connected with the thread. ठीक है? Now this pendulum bob is placed in a uniform electric field. That uniform electric field is acting horizontally. So this pendulum bob having a mass m and carrying a charge q. As it plays in a uniform electric field, it experiences a electric force, and due to that electric force is displaced from its मेन पोजीशन. ठीक है, तो ये अपनी मेन पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से. ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है. Now the force experienced by it is F is equals to QE. Now the weight of the pendulum bob is acting vertically downward. This is the force and this is the tension produced in a string. जैसे आप इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, it will experience a electric force, and that electric force is of magnitude Q into E. लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट टू राइट है, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है. ठीक है, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि वर्टिकल के साथ ये क्या एंगल बना रहा है और टेंशन की वैल्यू क्या है. ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा. नाउ वी रिजॉल्व द टेंशन फोर्स. टेंशन को रिजॉल्व करेंगे दो पार्ट में. दिस कंपोनेंट इज टी कॉस थीटा, दिस कंपोनेंट इज टी साइन थीटा. ठीक है, नाउ द बॉडी इज एट रेस्ट और बॉब इज at rest, so the net force acting on it is 0. तो फोर्सेस का हम रिजोल्यूशन करेंगे x एक्सिस डायरेक्शन में, वो भी 0 होगा, और y एक्सिस डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे, वो भी 0 होगा. तो पहले रिजोल्यूशन x एक्सिस में करें तो QE minus t sin theta is equals to 0. So t sin theta is equals to QE. That is the equation 1. Second, when we resolve the forces vertical direction and make it equals to 0, so t cos theta minus mg is equals to 0. So t cos theta is equals to mg. ये equation second. Now divide the equation 1 and equation 2. So equation 1 divided by equation 2. So t sin theta is equals to QE upon t cos theta is equals to mg. ठीक है, तो ये हो गया tan theta is equals to QE by mg. So theta is equals to tan inverse QE by mg. That is the angle made by the string through which the pendulum bob is connected with the vertical. That is the angle theta. ठीक है, अब थीटा की वैल्यू है तो इन दोनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन यूज करके आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. t cos theta is equals to mg, so t is equals to mg by cos theta, either using this equation or t sin theta is equals to QE, so t is equals to QE by sin theta. इन दोनों एक्सप्रेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. That is basically what physical significance of electric field. different situations में जब आप electric field place करेंगे, develop setup करेंगे, so how this electric field affect the system. ठीक है, now we discuss one more physical significance, that to examine the charge present on an electron, Millikan performed an experiment named as a Millikan oil drop experiment. Through this experiment, Millikan
basically identify the charge present on the electron. Charge present on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ठीक है. और ये चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उस एक्सपेरिमेंट में उसने व्हाट सेटअप present by the Millikan, उसने क्या किया, set up इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन. ठीक है. दो मेटल प्लेट्स इस तरीके से प्लेस करी. फर्स्ट मेटल प्लेट मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ठीक है. और इस पूरे, ये प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर दी और ये प्लेट जो है ये नेगेटिव चार्ज. ठीक है. अब उसने स्प्रेयर के थ्रू क्या किया, इस होल के थ्रू ऑयल ड्रॉपलेट्स फॉल्स डाउन करवाई. एज दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स आर फॉल डाउन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी इस तरीके से आपको ए से बी की तरफ. एज दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स आर मूविंग डाउनवर्ड due to their weight under the influence of gravity, due to the presence of electric field, they also acquire a experience of electric force. ये ऑयल ड्रॉपलेट क्या करेंगी, एक फोर्स इन पर क्या लग रहा है ऑयल ड्रॉपलेट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप. दूसरा फोर्स इन पर जो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज QE, क्योंकि ये सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स कैसी हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रही हैं. फॉर एग्जांपल क्या पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सॉरी, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. अब सपोज ऑल दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स सपोज एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक. यदि सपोज ये सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती हैं, ठीक है, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल कि ऑयल ड्रॉपलेट्स जैसे एंटर कर रही हैं और एज दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, देन दे विल एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगी, एक्सपीरियंस करेंगे. ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. लेकिन सपोज if they acquire a negative charge by gaining the electrons, at that situation what will happen, they experience an electric force in opposite direction of electric field. ठीक है. तो one force is acting downward and one force is acting upward. One state will be reached when these two opposite forces are equal in magnitude. तो ये droplet जो है that will be travel with the uniform velocity. That velocity is called terminal velocity. इस केस में क्या होगा, यदि वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो एक नेट फोर्स जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा. ठीक है. और नेट फोर्स नॉन जीरो रहेगा तो इट विल बी ऑलवेज एक्सेलरेटेड. इस सिस्टम में, इस सिचुएशन में वो क्या होगी, हमेशा एक्सेलरेटेड होगी. लेकिन इस सिस्टम में जब वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो इस केस में क्या होगा, ये नेट फोर्स आपका क्या हो गया, जीरो. देन mg minus q is equals to 0. So mg is equals to qe. So electric field intensity is mg by q. So my next question is related to this logic. Now, what is the question? A Millikan oil drop acquire a negative charge by grabbing 12 electrons when it placed in a uniform electric field of intensity E. If the density of oil droplet is rho, then find the radius of oil droplet. And again repeated the question. A oil droplet acquire a negative charge by grabbing 12 electrons and it is held stationary under the constant electric field of magnitude E
if the density of oil droplet is rho, then find the radius of the oil droplet. ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी. जैसे ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी तो क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपका लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा. वन स्टेज विल बी रीच्ड व्हेन दीस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, देन इट विल बी हेल्ड स्टेशनरी. हेल्ड स्टेशनरी का मतलब क्या है कि उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है. सो mg minus q is equals to 0. So mg is equals to qe. अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट. सो हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस. Now mg is equals to qe. Now m is a mass is the volume into density. Now the oil droplet is a spherical in nature, so 4/3 pi r cube into rho into g is equals to q into e. So 4/3 pi r cube is equals to qe by rho g. Radius r cube क्या हो जाएगा, that is 3qe by 4 pi rho g. So r का वैल्यू हो जाएगा 3qe divided by 4 pi rho g whole power 1 by. So that is the expression of electric field intensity. Sorry, expression of radius of a oil droplet. क्या हो जाएगा, radius of oil droplet. mg is equals to qe. m की जगह हमने क्या रखा, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g is equals to qe. ठीक है, तो रेडियस का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, 3qe by 4 pi rho g whole power 1/3. Is that clear? कोई डाउट है इस क्वेश्चंस में? हेलो, समझ में आ रहा है? वंदन, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है. ठीक है, थोड़ा सा हम मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. Now question is, an electron falls through a distance of 2 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb as shown in a figure. ठीक है, आपको फिगर कैसा दिया हुआ है देखिए. Now electric field intensity जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक प्लेट. Now electric field is from down to upward. Now the negatively charged electron is falling downward. ये जो गैप है, ये गैप प्लेट्स के बीच का गैप आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम. Then calculate the time of fall in this case. Second case, if the direction of field is reverse, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. अब नेक्स्ट केस में क्या किया, सेकंड केस क्या है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो दोनों प्लेट्स के बीच का गैप 2 सेंटीमीटर है. ये प्लेट अपवर्ड प्लेट नाउ है पॉजिटिव चार्ज, डाउनवर्ड प्लेट इज नेगेटिव चार्ज. नाउ द प्रोटॉन इज फॉलिंग डाउनवर्ड. फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट कर लिया और आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो भी क्या कर लिया है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नाउ फॉल डाउन. ठीक है, तो इस केस में भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फॉल एंड आल्सो कंपेयर देयर एक्सेलरेशन. आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट टाइम ऑफ फॉल ऑफ ईच पार्टिकल, electron and proton, and their acceleration. Now
now first case when electric field is from, जैसे ये प्लेट A ले लूं, ये प्लेट B ले लूं, electric field is from suppose B to A, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ए इज ए फर्स्ट केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए टू बी है, ठीक है, डाउन टू बॉटम टू टॉप की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इट एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, mg नीचे की तरफ, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, दैट इज अ फोर्स, ठीक है, तो इस केस में आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, सो एक फोर्स वेट की वजह से डाउनवर्ड लग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स है तो नॉन जीरो फोर्स लग रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज E into capital E, so the acceleration acquired by it is, acceleration क्या हो जाएगा, A is equals to F by M, तो फोर्स कितना है, कैपिटल E into स्मॉल e by M, so acceleration is small e capital E by M। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये तो एक्सेलरेशन आ गया, टाइम ऑफ फॉल, नाउ टाइम कैलकुलेट करने के लिए सपोज ये सेपरेशन आपको s दे रखा है, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो s इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी मैं 0 ले लूं इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2s by a अंडर रूट 2s by a, ये हो गया 2 इंटू एस, ए की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाय एम, तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू एम। नाउ इस एक्सप्रेशन में आप एस की वैल्यू क्या प्लेस कर लीजिए, 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर, मास आपको इलेक्ट्रॉन का दे रखा है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 2 इंटू 10 पावर 4, देन यू कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ फॉल, एक्सेलरेशन ये हो जाएगा और टाइम ऑफ फॉल ये हो जाएगा। देखिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था इसलिए फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन जीरो फोर्स लग रहा है इसलिए सिस्टम कैसा है, एक्सेलरेटेड है। लास्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें क्या था, फोर्सेस क्या थे, अपोजिट थे, इसलिए सिस्टम रेस्ट में था, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया है, और चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगेन फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड दैट फोर्स इज non zero, so the system of particle acquire a charge acceleration, that is f is equals to ma, तो qe m into a, सेम वही एक्सेलरेशन आ जाएगा qe by m, बस इस टाइम जो वैल्यू चेंज होगी वो क्या होगी, दैट इज अ मास ऑफ प्रोटॉन, उस आर्टिकल में क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, दैट मासेस अलग अलग हैं, इसलिए आपका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन को हम कंपेयर करें और टाइम फॉल को कंपेयर करें, तो एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन का स्मॉल ई कैपिटल ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
and acceleration acquired by the proton is small e capital E by mass of proton. दोनों को डिवाइड करें तो AE by AP is equals to MP by ME, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दूसरा टाइम फॉल का एक्सप्रेशन क्या था? दैट इज 2s by small e into capital E by M. ठीक है, अब दोनों का चार्जेस सेम है, सिर्फ आपका क्या है, मासेस अलग अलग है. चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो टाइम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट m के. तो T1 upon T2 या मास ऑफ टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ प्रोटॉन इज अंडर रूट ऑफ दिस. Under root of mass of electron to the mass of proton. So that is a comparison of acceleration acquired by both the particle, comparison of time of fall of both the particle in both the cases. Is that clear? Any doubt in that section? ठीक है, सो दैट इज बेसिकली व्हाट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आप डिफरेंट सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम पर अप्लाई करेंगे, देन हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट द सिस्टम. ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम में लगाए हैं. ठीक है, अभी जो हमने पेंडुलम वाला क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, ठीक है, तो ये इसमें मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों कांसेप्ट साथ में ऐड हो गए. इज दैट क्लियर?